अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आपको आवाज़ आ रही है और स्क्रीन विजिबल है कि नहीं? स्क्रीन मेरे ख्याल में शेयर नहीं की। वालेकुम अस्सलाम सर, आवाज़ आ रही है। अच्छा, आवाज़ क्लियर है। ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट्स आ गए हैं तो मैं क्लास को स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम एंड औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So we were discussing in our previous class regarding solving few numericals on the Terzari and Meyerhof bearing capacity equations. So it's a continuation of the previous class. So it's like based upon the concepts and the equations and the theories which we discussed in our previous classes. So here we can see that a rectangular footing is given here. Now we need to find out the size of the footing. P load is given. The moment in the direction of the B direction is also given. In the direction of the width of the foundation is also given. Horizontal load which is applied onto this footing is also given. The depth of the footing is equal to 1.5 meter. Okay, here the thickness of the column is also given 0.4 meter. Now, cohesion is 40 kilopascal, horizontal load is 600 kilonewton, unit weight of the soil is 17.50 kilonewton per cubic meter, and the friction angle is equal to 25 degrees. One more thing, that factor of safety should be 5. Okay, in designing this foundation, we need to take the factor of safety is equal to 5. Now, that load, okay, the value is given here, the values are given here. I guess all the information is given. Now, how to proceed? You can take a picture of this, or you can take a screenshot using the print screen option available on your laptop or computers and the keyboards. Now, how to start with such type of a example? Now, first we would assume the footing dimensions. I need volunteers. Okay, at least 3 volunteers. So what should be the assumption? We don't know the sizes. From where to start? Can you hear me? Please confirm. And the screen is visible. Yes, sir. Okay, Ashad. So we will assume, let's suppose 2.5 meter into 3 meter. Now, this might give us the factor of safety 5, or it's less than 5, or it could be more than 5. So we don't know. What's the next step? We will find out eccentricities, and that we can find out EB. So I need the value of EB. Please help me. What would be the value of eccentricity in the direction of width of the foundation, and how we can calculate that? Please kindly give me the value of EB.
So 0.24. Okay. Name, please. Ashhad. Okay, Ashok. 0.24 meter. Now, okay, I will accept that. No worries. That we find out MB divided by V, and that is equal to 600 divided by 2500. This would be the EB. Okay. Now, what would be the value of EL? Okay, what should be the value of EL, or the eccentricity in the direction of the length of the footing? हिजबुल्लाह EL क्या होगा? मोहम्मद उस्मान EL क्या होगा? मोहम्मद जैद EL क्या होगा? एजाज अली आदिल खान ML by ML by V. That's 0 is equal to 0. Thank you. Okay, now we got that, and B prime would be equal to, and L prime would be equal to, I told you I need your help in solving numericals and problems. Sir, B prime 2.02. 2.02 hoga, and that would be B minus 2EB, okay? Yes, sir. And how about the L prime? सर वो वही सेम 3 रहेगी क्योंकि EL 0 है. L minus 2EL, that EL is equal to 0. So L prime basically is equal to L. Okay, accepted. And also the check is that B prime is less than the L prime. So you don't need to swap the values. No need to swap the values. Okay, no need. It's okay. Now you need to give me Meyerhoff's bearing capacity factors C, Q, and N gamma for friction angle equal to 25 degrees. 1, 2, 3. And C and Q and gamma.
खामोश क्यों होंगे? प्लीज बातें किया करें, सर क्योंकि कैलकुलेट अगर कर आप रहे हैं सर, कर रहे हैं। पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि कल 10 मिनट के लिए फिर जो है ना मैं क्लास ले रहा था और सेक्शन जो ए वाले हैं वो खामोश थे, तो एटलीस्ट जवाब दिया करें कि हम कैलकुलेट कर लें। ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। You need to use the bearing capacity factors proposed by Mehrhouse. Sir, NQ is equal to 10.66. 10.66, okay. NC is equal to 20.7. 20.7. And NGM is equal to 6.76. 6.76. Name, please. Ijaz. Haji? Ijaz. Ijaz Ali. Okay. I guess I would agree with these numbers. Okay, now let's move towards the bearing capacity factors, shape factors. Yeah. How about the shape factors? Give me the value of Kp, which is tangent square of tangent 45 plus phi by 2. Okay. And we will get the SC 2.46 kp. 2.46. Okay. You can find out Kp from this one, and SQ and S gamma. सर 2.46 kp की वैल्यू है, kp की। Okay, 2.46 is Kp value. Okay, sorry. सर SC 1.33। 1.33. Okay. Okay, I would agree with that one as well. SQ, 1.35। 1.35. Okay, I would agree with this one as well. DC and DQ and D gamma. सर S gamma भी 1.35। Okay, same here. How about the depth factors? सर ये कैलकुलेट कर रहा हूँ। सर पिछले साइड पे तोड़ा जाए सर, एनसी और एन गैमा की वैल्यू कितनी है? जल्दी से लिख लें, क्योंकि मैंने इसको मिटा देना है। NC and Q and gamma जो है ना नोट डाउन कर लें प्लीज, और SC, SQ, S gamma जो शेप फैक्टर्स हैं उनकी वैल्यूज भी आप काइंडली नोट डाउन कर लें। DC, DQ एंड D gamma जो है ना अभी हमारे पास कैलकुलेट हो रहे हैं। DC, DQ और D gamma की वैल्यूज क्या होंगी? What would be the values of DC, DQ and D gamma? There is an equation 1 plus 0.2 under root Kp d by b prime. This will give you the DC, DQ and D gamma can be find out. सर using DC equation. 1.233। Okay, 1.233. यस सर। DGM is equal to 1.12.
1.12, and this will be equal to, sorry, this would be equal to this one as well. .12. Now please note down these values as well. Now we are going to find out the inclination factors. Now inclination factors, we need to find out the theta first, and theta can be found out using this equation. Give me the value of IC is equal to IQ. Sir, theta is And 13.5. okay, that's good. 13.5. Okay, it's okay. I gamma and IC. Sir, IC 0.72. Okay, just give me a few minutes here. Okay, that's IC, and ICIQ is equal to 0.72. Okay, I would agree with that one as well. How about Sir, the I gamma IGAMA? is equal to 0.21. Okay, 0.21. Note down these values as well, please. Okay, sir. Now we need to find out the Q ultimate. So you use the Meyerhoff's bearing capacity equation and find out the Q ultimate. And if you remember, that is C and C, SC, DC, IC plus gamma prime D, NQ, SQ, DQ, and IQ. So this is the first term. This is the second term. And now we will add third term as well, which is due to the self-weight of the soil beneath the footing. And gamma, S gamma, D gamma, and I gamma. This is the third term. So Q ultimate value would be equal to समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सर 1279.58 मेरे पास आ रही है. 1279.58. 0.58, sir. Okay, that's fine. दूसरा, I need second and third value as well. So there's us खामोश है क्यों? Sir, 1364. So this कैलकुलेटर नहीं है तो फोन पे कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है. अच्छा, खैर है, थोड़ा सा टाइम ले लें, कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा टाइम के लिए थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं. ठीक है, थोड़ा सा जो है ना इसको हम वेट करते हैं. 1279.8 अरशद के पास आ रही है. सुदेश ने भी कुछ बोला था, मेरे सुना नहीं है, सॉरी. 1364. 364, ठीक है.
ये अरशद के पास आ रही है, ये सुदेश के पास आ रही है। आदिल मैं बोला। ये आदिल ने बोला है? जी सर, कर रहा हूँ Yes, सर। sir. अच्छा, एक वैल्यू और दे दे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, इसको जरूर घर पे जो है ना सॉल्व करें, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्विज पॉइंट ऑफ व्यू से, असाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के। यस 1324.4 1324.4 0.4 किलो पास्कल है, ये हमारा पहला सुदेश है। ठीक है, मेरे पास ये वाली वैसे रीडिंग आ रही है, जो वैल्यू है ये वाली है। So you can take this value for the time being, but you can confirm later on all these parameters. Okay, now we are given with the effective area, and that effective area would be equal to 6.06 square meter. Okay, the initial dimensions 1.5 or into, or when we will consider this B, and we need to consider the effective one, not these one. Sorry. So what were the effective dimensions? The effective dimensions were, okay, it's 2.02. 2.02 into 3. Okay, so we will get this one. Now we need to apply, we need to find out the applied stress, and that can be found out by the effective area. The vertical load is 2,500, 6.06. We will get the 412.5 kilopascal. Then we need to find out the factor of safety, and to find out the factor of safety we need to divide the Q ultimate by the Q applied, and that would be equal to, if we consider 280 divided by the Q applied, so give me the value please. 3.1. 3.1, and that is okay, and that is less than the required one. So what should we do? It means that 2.5 B and L is equal to 3.0 will not give us this factor of safety, but it will give us this factor of safety. But we need to design the foundation which should give us this factor of safety. This was our first assumption. समझ आई है कि नहीं आई? Yes sir. यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। अब क्या करेंगे? सर एरिया ज्यादा करेंगे। एरिया ज्यादा करेंगे सर। ओके, एरिया ज्यादा करेंगे, लेकिन एरिया कैसे ज्यादा करेंगे? लेंथ एक, ओके, लेंथ ऑन वेट, ठीक है, सही है, गॉट इट। नाउ one method is that we assume greater dimensions. For example, we assume that okay, this is 3.5 and then length is, let's suppose, 4.0, and then you do the calculation again and you find out the factor of safety. There is another method
as well. And I will call that as method 2. And that method says that you already know the Q ultimate, right? हमें Q ultimate का पता है. फिर हम इससे क्या करेंगे? Q safe निकालेंगे. Q safe कैसे निकालेंगे? इसको simply 5 पे डिवाइड करेंगे. तो रीडिंग क्या आएगी? ये आएगी. एग्री? अब हमारे पास A प्राइम जो है ना B प्राइम इंटू L प्राइम के बराबर है, या हम कह सकते हैं कि वर्टिकल लोड डिवाइड बाय द Q safe. So it will give us an area which corresponds to factor of safety of 5. So this is the factor of safety 5. So what's the area value there? 9.76. Okay, so 9.76 area of the footing would give us this much of Q safe, and for this Q safe we need to use this value of factor of safety. Now once we do that, now we can there is a relationship that B prime divided by L prime is equal to B prime divided by L prime. I would call that as new B prime divided by L prime, and that's the previous one. For example, 2.02 divided by 3. What's the ratio? Please kindly give me the ratio. So 0.673. 0.67. Okay, that's great. Now, if we increase the B prime and L prime with this ratio, it will save lots of time. And how we are going to do that? Okay, so for example, B prime divided by L prime is equal to, we already know that it's equal to 0.63673. And if we call that as equation number 1, but we already know that B prime into L prime is equal to, this is the new area. Agree? And we can call that as 2. Now from the equation number 1, B prime is equal to 0.673 to L prime. Now if you put this equation into the equation number 2, and if you solve it, you will find out the L prime. Please kindly give me the value of L prime. And then B prime value as well. ये बहुत important point है इस प्रॉब्लम के हवाले से कि एक रेशियो के साथ आपने L प्राइम और B प्राइम को इंक्रीज करना है. इस तरह नहीं है कि अगर आप कोई assumption लेते हैं, पहले आप assumption ले सकते हैं. Sorry, बोलिए. Sir, B prime 3.8. L prime. L Okay. prime, sir. Sorry, L prime. No problem. B prime 2.56. 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
क्या मसला हल हो गया हमारा? और बी हमारे पास क्या होगा और एल हमारे पास क्या होगा? What should be the value of B and L? Width of the footing and the length of the footing. So this सर सर हमने जो भी 2.3 2.3. सर वेट दोबारा कर लूँ, ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। EB हमारे पास था 0.24, EL हमारे पास था 0, ठीक है। तो अब हमारे पास B और L क्या होगा? सिंपल है, L प्राइम और B प्राइम गिवन है। सर B 3.04, ये हमारे पास 3.04 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और सर L प्राइम L ही रहेगा क्योंकि E 0 है ना। ठीक है, 3.8 को ही हम उसका रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये तो आ गया, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? हमें B प्राइम B भी मिल गया और L भी मिल गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? कोई उसको आइडेंटिफाई कर सकता है? इकोनॉमी सर। नहीं, इकोनॉमी तो खैर वो सर तो बी होगी। ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे मैं आता हूँ, चले। ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी Q अल्टीमेट की, जो मेरे पास लेट सपोज Q U 1280 kPa है, अगर आपको याद हो तो ये तो हमारे पास इस B प्राइम से आई थी ना, ठीक है। इसके बाद फिर हमने कैलकुलेट किया, इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाला, तो वो लेस देन 5 आया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी के, हाँ यहाँ पे देख लें, देखिए हमारे पास Q अल्टीमेट क्या था? 1280 था। Q सेफ हमने फाइंड किया, लेकिन ये जो था ये हमारे पास B प्राइम जो कि हमने प्रीवियस इस्तेमाल किया था, उससे एक अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आई थी। तो अगर हम ये डायमेंशंस इस्तेमाल करेंगे तो एग्जैक्टली अभी हमारे पास, किधर है ये डायमेंशंस, किधर चली गई है? ये वाली। तो ये एग्जैक्टली हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 5 नहीं आएगी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हमारे पास इक्वल आ जाएगी। चले देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कहते हैं कि अगर हमारे पास ये डायमेंशंस आ जाती हैं, कहते हैं सॉल्यूशन यहाँ पे ओवर हो गया है, लेकिन कहते हैं कि ये हमें क्लोज टू 5 जो है ना वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे सकती है, लेकिन एग्जैक्टली 5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं देख सकती, क्योंकि इस Q अल्टीमेट को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था? वो जो प्रीवियस B प्राइम था वो इस्तेमाल किया था। अब हम रिकैलकुलेशन कर सकते हैं और उस रेशियो के साथ उसको डायमेंशंस को बढ़ा सकते हैं। कहते हैं कि फर्स्ट और सेकंड टर्म में इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आता, लेकिन कहते हैं कि थर्ड टर्म में क्योंकि आप B को चेंज करते हैं तो इसलिए उसमें चेंज आता है, और वो भी अगर चेंज बहुत ज्यादा नहीं है तो फिर बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। So the results will not, the Q ultimate won't change if the B prime is not very large. Okay. Now
if you want to do the recalculations several times, then after that for more refined definitions, you can say that these are the dimensions which will give you exactly the factor of safety equal to 5. अगर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी की ज्यादा फिक्र है तो फिर जो है ना आप एग्जैक्टली जो है ना अगर फाइंड करना चाहें तो मोर रिफाइंड कैलकुलेशंस के साथ आप ये डायमेंशंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इधर देखें तो 3.04 और 3.08 में इतना फर्क नहीं है, 3.81 और 3.87 में भी इतना फर्क नहीं है। तो इसलिए अगर आप वो पुरानी जो अल्टीमेट इस्तेमाल करें तो उससे भी आप डायमेंशंस जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने एक चीज नोटिस की तो हमने अजम्पशन में इस बी को लिया कि इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, बी है। अब इस डायरेक्शन में अगर हमारे पास एल हो तो क्या होगा, इस पे आप प्लीज सॉल्व करें इसको। अगर मैं अज्यूम करूं कि ये जो यही प्रॉब्लम है, इसको अज्यूम करें, ठीक है, इसी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है। नाउ यू नीड टू assume that this is L. Same problem, आप उसको रिपीट करें, यहीं पे सॉल्व करते हैं। चलें, हमारे पास EB क्या आएगा, समझ आ रही है कि नहीं? 0 EB हमारे पास 0 आ जाएगा। EL क्या आएगा, 0.24 0.24 मीटर। ठीक है, अभी इफेक्टिव डायमेंशंस मुझे दे दें। बी प्राइम क्या होगा, सर सिर्फ 3। क्यों, बी प्राइम कैसे 3 हो सकता है? सर बस चेंज करते जाए। नहीं चेंज करेंगे, इस तरह तो नहीं है कि इस तरह चेंज करेंगे। क्यों चेंज करते जाएंगे, इसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे अभी हम करेंगे क्या, किधर चला गया है, एनीवेज उधर ही है। यहाँ पे बी, अगर ई बी 0 है, ठीक है, जब ई बी 0 है तो 2.5 हमारे पास अब बी है, तो बी और बी प्राइम जो है ना हमारे पास इक्वल होगा 2.5 के। आ रही है समझ के नहीं आ रही? यस सर। अब समझ आई है? तो ये जो है ना इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, वहां पे थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बी प्राइम की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी वही जो बी की वैल्यू है, क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी इन बी डायरेक्शन नहीं है, अभी एल के डायरेक्शन में मौजूद है, तो इसलिए इसको 2.5 जो है ना वो बी प्राइम हो जाएगा। एल प्राइम जो है ना हमारे पास क्या हो जाएगा, एल माइनस 2EL, क्योंकि 2EL हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 0.24 मीटर है। तो फिर हमारे पास जो एल प्राइम की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अजम्पशंस आपको याद है कि नहीं? अजम्पशन आपको याद नहीं है? जो प्रीवियस अजम्पशन थी वो हमारी क्या थी, 2.5 मीटर इंटू 3 मीटर की थी। अब सॉल्व करें ना यार, क्यों खामोश क्यों है? सर 1.5 को 1 पॉइंट, आई नीड अनदर वैल्यू एज वेल। ठीक है, आई नीड अनदर वैल्यू एज वेल। दिस सीम्स टू मी bit off. 1.52 क्यों? तो ये हमारे पास B है और L हमारे पास ये है, तो फिर क्यों आ रहा है? सर 2.52 2.52 है यार। ये अगर मिस्टेक आपने कर ली तो आपसे एटलीस्ट 2 मार्क्स जो है ना वो कटेंगे एटलीस्ट। अच्छा, बी प्राइम जो है ना
वो हमारे पास क्या है, एल प्राइम के से कम है, तो ये चेक भी हमारे पास ओके है, सही है। सर अच्छा अभी, हाँ बोले प्लीज। सर ये बी पिछले केस में 2.5 नहीं था और L3 था, ये तो पिछले केस में नहीं था। क्यों नहीं था, दोनों दोनों केसेस में भी 2.5 था और एल जो है ना वो 3 मीटर था। अच्छा लेकिन वैल्यू सेम है लेकिन सिर्फ उसकी वो चेंज हो गई है। वैल्यू सेम है, सिर्फ उसकी जो डायरेक्शन है ना वो चेंज किया गया है। आप अच्छा कहते हैं अच्छा पहले ठीक एजम्पशन है। में ये इस डायरेक्शन में बी था, विड्थ जो था ना वो जो शॉर्टेस्ट डायमेंशन है वो इस साइड में थी। अभी कह रहे हैं कि नहीं, लेंथ जो है ना वो इस डायरेक्शन में है, क्योंकि हमारे पास है तो रेक्टेंगुलर फुटिंग, तो दोनों यस सर। केसेस हो सकते हैं हमारे पास। गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा आप कहते हैं हम, अच्छा अभी आपने फी हमारे पास 25 डिग्रीज हो तो हमारे पास बियरिंग कैपेसिटी के फैक्टर जो है ना वो क्या होंगे, सी एन क्यू एन एन गैमा। ये आप नोट करते जाएं, ठीक है, मैं इसी स्लाइड पे जो है ना इसको मैं लिखता जाऊंगा, एन सी एन क्यू एन एन गैमा। बल्कि इस तरह करें, मैं इसको सारे फैक्टर्स यहाँ पे ले आता हूँ कि आपने सारे कैलकुलेट कर लें, एन सी के, एन क्यू और एन गैमा, ठीक है। फाइनल जो है वो आपने मुझे बताने हैं। फिर हमारे पास इसके बाद शेप के आएंगे, शेप के जो फैक्टर्स हैं, एस सी, एस क्यू और एस गैमा, वो आपने मुझे बताने हैं। फिर डेप्थ के हो जाएंगे, ठीक है, वो हमारे पास डी सी, डी क्यू और डी गैमा हो जाएगा। फिर हमारे पास इंक्लिनेशन फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, उसके लिए अपने थीटा फाइंड करना है। फिर आई सी, आई क्यू और आई गैमा। सर एन क्यू 10.66, 10.66, NC is equal to 20.7, sir. N game is equal to 6.76. सर मेरे पास 20.72 आ रही है एनसी, ठीक है, तकरीबन चलिए। सेम। सर एस सी 1.48, 1.48 सही है, कंफर्म कर लें प्लीज। एस क्यू हमारे पास क्या है, ठीक है।
I will repeat once again, these problems, numericals, examples are very, very important from the exam point of view, quiz assignments point of view, okay? And also, as a whole, in understanding the foundation engineering, you need to calculate, you need to speed up your calculation as well. So please kindly solve SQ the 1.24. okay, SQ 1.3 1.244 1.244, okay. और सर SR भी यही होगा S गेम. Okay, so same here. Now DC, the depth factors. सर ये कैलकुलेट कर रहा हूँ. Okay, please take your time. पिछले जिनके पास इक्वेशंस लिखी नहीं है तो वो पिछले लेक्चर को जो है ना वो कंसल्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं. वहाँ पे देखिए अपने पास अपने कॉपी में रजिस्टर में अपने पास वो सारी इक्वेशंस लिख लें, वो आपकी बहुत काम आएंगी. ठीक है ना. प्लीज काइंडली इक्वेशंस को लिख लें. मेयरहोफ के जो बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हैं, शेप फैक्टर्स हैं, डेप्थ फैक्टर्स हैं, इंक्लिनेशन फैक्टर्स हैं, सारी इक्वेशंस बहुत ही DC 1.18. 1.18, okay, 1.18 DQ. सर ये कर रहा हूँ. ठीक है, आराम से चलिए, आप आराम से करें. मैं 2 मिनट 3 मिनट के बाद जो है ना आता हूँ. ठीक है ना. आप सारे अपने पास IC, IQ और iGEMA की भी मुझे दे दें. ठीक है, 2 मिनट्स में आपको दे रहा हूँ. ओके, अरशद, सुदेश, DQ की वैल्यू बताएं 1 by 1. 1.1. 1.10 मैं कह दूंगा. अच्छा, और D gamma
same value. CK 1.10. Now how about the theta? 13.5. 13.5. Okay. How about IC, IQ, and I gamma? Sir, IC and IQ दोनों 0.72 Okay, 0.72, 0.72. और I gamma equal 0.21. Okay, good. सर ये मेरे पास है. ठीक है, सही है. यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. अच्छा, यहाँ पे अभी हमने क्या फाइंड करना है? यहाँ पे अभी हमने Q अल्टीमेट फाइंड करना है, ठीक है ना? तो मेयरहोफ का जो है ना इक्वेशन इस्तेमाल करें और यहाँ से मुझे Q अल्टीमेट दे दें. अच्छा चलिए, Q अल्टीमेट हमारे साथ जो प्रीवियस एग्जाम्पल था उससे हमारे पास ये आ रहा था, ठीक है, जिसमें हमने B को अज्यूम किया था इन द डायरेक्शन ऑफ H हॉरिजॉन्टल जो लोड था और मूवमेंट्स थी उसके. अब इस केस में अभी आप देखें कि Q अल्टीमेट क्या आ रहा है. मल्टीप्लाई करें सारे फैक्टर्स को. Sir, 1364. Now you can clearly see that the ultimate bearing capacity is greater than this first case. Here we assumed B and here we assumed L. So we are going to see some difference there as well. Okay. Now solve the problem, same problem. Okay. You need to, the ultimate is how much? 13, I would say 77 kilopascal. Now do the same thing. You need to find out the A prime from the previous. I would call that as previous. Okay. And the applied stress, you can find out the Q applied. And then you need to find out the F or S, which is the factor of safety. And you need to check whether it's greater or less than 5. And then you need to, if it's less than, then you can increase the dimensions using that specified ratio. So I would say that what is the A prime or the effective area? 6.3. Okay, that's 6.3. How about the Q applied? 396.8. 396.8. Okay. How about the factor of safety?
3.47. So slightly increase in factor of safety can also be seen, but still it's less than 5. So we need to revise the dimensions right now. And how we are going to do that, we already know that Q ultimate is equal to 1377 kilopascal. Now give me the Q safe for having a factor of safety equal to 5. Okay, 275.4. 275. So Q safe 75.4 is also greater than the previous one, and because in the previous case it was 255 point something. Now how about the A prime, and that would be B prime into L prime, vertical load divided by the Q safe. It will give you an area which would be 9.073 square meter. Okay, so this is the area. Now this is the new area from this assumption. Initially the area was 6.3 meter square, but if you remember, in the previous case it was somewhat, I guess, 9 point, in the previous problem, what was the value? 9.78 or something like that. Yes, 769. So 9.769 meter square when we assumed for the B in the direction of H and horizontal force and the moment force, okay, moment when it was applied. So you can clearly see that if you assume, your area can also be reduced when you assume the length of the footing in the direction of the horizontal loads and the moments. Anyways, these are just the few things to consider. Still we need to find out the dimensions. Okay, now how we can find out the dimensions? For example, we are given with the area, but we don't know about the B prime and L prime, and then B and L, which are the width and the length of the foundation. So you need to give me the B prime, L prime, and then you need to give me the B and please आपने करना क्या है कि B प्राइम डिवाइड बाय L प्राइम की जो रेशियो है उसके साथ आपने इंक्रीज करना है. इनिशियली आपने assumption क्या ली थी? 2.5 into 3 ली थी. सर रेशो हमारे पास 0.99 आ रही है, 0.992 रेशो. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है. उन इक्वेशंस को सॉल्व करें. आपके पास 3 मिनट है, ठीक है ना? 3 मिनट में आप इसको सॉल्व करें.
बी प्राइम की वैल्यू क्या आ रही है? 3 मीटर। ओके, एल प्राइम की 3.024। बी की ये तो सेम आ जाएगी। एल की क्या आएगी? 3.504। ओके, सो हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन फिर वही पॉइंट रह जाता है कि जो हमारा क्यू अल्टीमेट था वो हमने कहाँ से फाइंड किया था। जो क्यू अल्टीमेट था उसमें हमारे पास एक टर्म ये था, फिर दूसरा टर्म था, फिर तीसरा टर्म था, और तीसरे टर्म में जो है ना ये बी प्राइम जो है ना ये प्रीवियसली जो क्यू अल्टीमेट है, जो प्रीवियस डायमेंशंस है ना, प्रीवियस डायमेंशंस उससे फाइंड किया गया। उसमें जो था बी हमारे पास 2.5 था, तो एल जो है ना अभी हमारे पास 3.0 था। इसलिए हमारे पास एग्जैक्टली जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर हम इन डायमेंशंस को लेते हैं तो वो एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, बल्कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास सेम आंसर जो है ना वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का आएगा, थोड़ा बहुत जो है ना वो वेरी करेगा। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया ये वाला प्रॉब्लम। अब एक दूसरा प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अभी एक स्ट्रिप फुटिंग है, ठीक है, और स्ट्रिप फुटिंग में स्ट्रिप फुटिंग में हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास सॉइल तो खैर नॉन प्लास्टिक सिल्टी सैंड है, और उसका जो सी प्राइम है वो 0 है, और फी प्राइम जो है ना हमारे पास 30 डिग्रीज है। फिर हमारे पास ग्राउंड वाटर टेबल की इंफॉर्मेशन भी गिवन है, डेप्थ की इंफॉर्मेशन भी गिवन है, ठीक है। तो ये हमारे पास वाटर टेबल जो है ना ये तकरीबन यहाँ पे है, ये हमारे पास 1.2 मीटर हो जाएगा। सैचुरेटेड यूनिट वेट हमारे पास यहाँ पे भी है और इसके नीचे भी है, ठीक है ना। जो गैमा है हमारे पास, गैमा सैचुरेटेड है, वो कितना है, वो 19.7 है किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर, यहाँ पे भी है और ये इसके नीचे भी है, ठीक है। ये हमारे पास जो विड्थ है इसकी वो 1.2 मीटर है, और ये हमारे पास जो डेप्थ ऑफ द फुटिंग है वो हमारे पास 0.6 मीटर है। कहते हैं कि यू नीड टू फाइंड आउट फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास इतनी होनी चाहिए। फाइंड क्या करना है हमें, व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू डिटरमिन द सेफ बियरिंग प्रेशर। क्यों सेफ हमने फाइंड करना है, और पी सेफ हमने फाइंड करना है। अभी यहाँ पे करना क्या है कि आपने इक्वेशन जो है ना वो तिरजागी की इस्तेमाल करनी है। तिरजागीज बियरिंग कैपेसिटीज इक्वेशन जो है ना आपने इस्तेमाल करनी है, और मेयरहोफ बियरिंग कैपेसिटी जो फैक्टर्स हैं वो आपने उनकी इक्वेशंस जो है ना इस्तेमाल करनी है। आइए समझ के नहीं आई सुदेश अशद, तिरजागी की बियरिंग कैपेसिटी की इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, और जो बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स है ना वो मेयरहोफ के करने हैं। ओके सर।
ठीक है, ये हमारे पास फाउंडेशन लेवल है। आपके पास जो है ना, इसके लिए मैं 5 मिनट देता हूं, आप सॉल्व करें, थोड़ा सा सोचें इस पे। 5 मिनट्स के बाद जो है ना मैं आपको सोल्यूशन देता हूं। सर यस प्लीज। सर एक क्वेश्चन था कि सर ये तिरजा की जो इक्वेशन है और जो मेयरहोफ है सर, ये तिरजाई हम कहाँ पे यूज करेंगे, मतलब हमें किस तरह पता चलेगा, और जो ये मेयरहोफ है इसको कब यूज करेंगे सर? ये आपको बताएंगे, ये आपसे पूछा जाएगा, ये गिवन होगा क्वेश्चन में सर। हाँ हाँ, ये गिवन आपको गिवन होगा, ठीक है ना। जिस तरह भी अगर आप देखें ना, यहाँ पे गिवन है कि आपने तरजागी का जो है ना इक्वेशन इस्तेमाल करना है, और मेयरहोफ के पिछले में जो है ना जहाँ पे इंक्लिनेशन वगैरह जिक्र आ रहा था, तो आपको क्लियरली पता चल जाता है कि यहाँ पे मेयरहोफ है। जहाँ पे आपको क्लियरली बोल दिया जाता है ना, फिर आपको क्लियरली बोल दिया जाता है कि यहाँ पे आपने कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, ठीक है। सर और सर अगर बोला ना हो सर, कोई दूसरा इस तरह कुछ बोला ना हो तो आपको तो पता लग सकता है ना कि जहाँ पे इंक्लिनेशन की या इफेक्टिव विड्थ की जो है ना वो जिक्र हुआ है प्रॉब्लम में, तो वहां से भी आपको कुछ ना कुछ पता चल जाता है कि ये मेयरहोफ की इक्वेशंस जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल करने चाहिए, ठीक है ना। यस यस सर यस। ओके गुड। थैंक यू। सॉल्व कर लिया आप लोगों ने कि नहीं? कहीं मसले मसाइल आ रहे हो तो मुझसे पूछ लें प्लीज। कंफ्यूजन कहाँ पे आ रही है?
सबसे पहले आपने इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल फाइंड करना, ठीक है। इफेक्ट ऑफ वाटर, इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल आप कैसे फाइंड करेंगे? ओके, आ रही है से सर टोटल जो डेप्थ गिवन है वाटर टेबल तक, उससे फाउंडेशन की डेप्थ सब्ट्रैक्ट करें। हाँ, वॉइस लैग हो रही है। आवाज लैग हो रही है? यस सर। अच्छा, अब क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर नाउ? ओके, खैर अब मेरी कैलकुलेशन को आप देखते जाएं, ठीक है ना। ZW हमारे पास क्या है? ZW हमारे पास फाउंडेशन के नीचे जो से लेकर ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 1.04 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? वाटर टेबल 0.6 यहाँ पे है, ठीक है। अब हमारे पास वो कितना आ रहा है? 1.2, ठीक है ना। ये हमारे पास 0.6 मीटर, तकरीबन ये 1.2 मीटर आ रहा था। तो अब ये यहाँ पे लाई करेगा, तो जो थर्ड टर्म है उसमें हमारे पास गैमा क्या हो जाएगा? गैमा हमारे पास गैमा सैचुरेटेड माइनस गैमा W प्लस ZW डिवाइड बाय H हो जाएगा, और हमारे पास गैमा माइनस गैमा सबमर्ज्ड हो जाएगा। इससे हमारे पास गैमा क्या आता है? प्लीज गैमा की वैल्यू मुझे दे दें। गैमा प्राइम की आप वैल्यू मुझे दे दें प्लीज। अब 15.5 सर। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या करना है आपने? कैपेसिटी की जो इक्वेशन है वो आपने इस्तेमाल करनी है। तो हमारे पास वो इक्वेशन ये है कि C एंड C SC हो जाएगा, गैमा प्राइम D एंड Q हो जाएगा, प्लस हमारे पास हाफ गैमा प्राइम B एन गैमा और S गैमा हो जाएगा। हमारे पास स्ट्रिप फुटिंग है, तो SC और S गैमा हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा। फी के लिए हमारे पास बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? NC NQ हमारे पास एन गैमा वही है जो हमारे पास मेयरहोफ के लिए, ठीक है ना। मेयरहोफ
की जो बियरिंग कैपेसिटी की इक्वेशन है, इक्वेशंस बल्कि हैं इक्वेशंस, ठीक है ना, फैक्टर्स को निकालने, फैक्टर्स के लिए वो आपने फाइंड करने हैं। तो वो आपने मुझे देने हैं कि वो क्या क्या वैल्यूज आपके साथ आती हैं। 2 मिनट आप ले लें प्लीज। इसके साथ फिर लास्ट में आपने मुझे क्यू अल्टीमेट की भी दे देंगे, क्योंकि क्यू अल्टीमेट हमारे पास आएगा। क्यू अल्टीमेट जब आ जाएगा तो आपने मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो कह रहे हैं कि 3 है, तो वो आपने क्यू सेफ फाइंड करना है विद क्यू अल्टीमेट, और फिर उसके बाद पी सेफ आपने फाइंड करना है जो लोड है, ठीक है ना। तो स्ट्रेस सेफ बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करनी है, फिर आपने सेफ बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करनी है, और सेफ लोड आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो इस के लिए आप 2-3 मिनट्स ले सकते हैं प्लीज। अच्छा, आपके पास क्यू अल्टीमेट की क्या रीडिंग्स आई हैं? क्यू अल्टीमेट हमारे पास आ जाएगा 363। आवाज आ रही है आपको? प्लीज कंफर्म करें। यस सर। क्यों जो हमारे पास सेफ है वो हमारे पास आएगा क्यू अल्टीमेट डिवाइड बाय एफ आई एस, ये हमारे पास 363 डिवाइड बाय 3 है, तो वो 121 किलो पास्कल आ जाएगा, ठीक है। अब हमने अगर 151 है सर। कितना है 121, सॉरी, या यू आर राइट, ठीक है 121। फिर हमने अगर इसको क्यू सेव करना है और हमने b इंटू 1 करना है, ये 1 इसलिए करते हैं कि स्ट्रिप फुटिंग है और लेंथ इज वेरी लार्ज देन द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, ठीक है। तो इससे हमारे पास 145 किलो पास्कल आ जाता है, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड था हमारे पास, पी सेफ भी आ गया और हमारे पास
सेफ भी आ गया। सर ये ठीक है? 1 कैसे लिए सर? ये 1 इसलिए लेते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रिप फुटिंग है। सॉरी, इट्स नॉट किलो पास्कल, ये किलो पास्कल नहीं है, ये किलो न्यूटन है पर मीटर। जो एल है ना, एल वो 1 मीटर लिया जाता है, यूनिट लिया जाता है ड्यू टू दी स्ट्रिप footing. Okay, so this correction should be made here. It's kilonewton per meter, not the kilopascal. ठीक है ना? Okay, so it's a strip footing. That's why. Now, for another simple problem, we will open this one, the presentation slide. Here you can see that. Okay, now Ashad, please kindly read out this problem. And yes, continued from the previous example, geotechnical engineer provided QS is equal to 121 kilopascal. He had no idea of eccentricity of load at that time. Later, structural engineer calculated a vertical load of 100 kilonewton per linear meter of wall length, and this load is offset from the center line of the strip footing by 0.15 meter. EB is equal to 0.15 meter. Determine the largest bearing pressure Q prime and the least bearing pressure Q double prime exerted by the eccentrically load footing. Is Q prime acceptable from an allowable capacity standpoint? Okay, देखिए डेटा हमारे पास गिवन है, Q safe गिवन है, वर्टिकल लोड गिवन है, is eccentricity in the direction of width of the foundation given है. We need to find out the largest bearing pressure and the least bearing pressure in this condition, and then we are asked about whether it's acceptable or not, and that we need to compare with the maximum bearing pressure. Okay, so it's very simple. We already know that Q prime is equal to Q into B plus 6E, and we need to divide that by B square. Okay, now please kindly give me that value as well, and this one, the least bearing pressure value as well. Okay, these two values, and then we will compare that what's going on, because the geotech engineer gave initially the safe bearing capacity, which was equal to 121 kilopascal, but as it's mentioned there, the eccentricity information was not provided at that time to the geotech engineer, so the structural engineer calculated the vertical load of 100 kilonewton per meter, but later on he find out that there is an eccentric loading condition, and now we need to find out the Q bar, which means the largest bearing pressure and the least bearing pressure. And if you remember, we discussed about the eccentric loading, that for example, if it is a bit far, like if we say that this is the center one, if the load is, for example, applied on this side P, and it's like the eccentricity is EB, so the pressure here would be greater compared to the pressure here, and that would be Q bar, and this would be Q double prime or Q double prime. Okay, I need values, please. सर ये कैपिटल बी तो हमारे पास स्टेटमेंट में नहीं गिनी। स्टेटमेंट में हमारे पास कैपिटल बी गिवन नहीं है। पॉइंट अच्छा है वैसे। कंटिन्यूड फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल। प्रीवियस एग्जाम्पल क्या कह रहा है? यहाँ पे बात आपकी सही है, लेकिन प्रीवियस एग्जाम्पल क्या कह रहा है?
प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास 1.2 मीटर ले लें आप, देखें इसके साथ बी को करें 1.2 मीटर। चले ये आप कर लें, ठीक है, नहीं आसान है, ये घर पे कर लें, कोई मसला नहीं है। अभी हमारे पास आ जाएगा सर 145.8। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये जो है ना अभी आप देखेंगे फिर इसके साथ इन्होंने कंपैरिजन किया है। ये देखें कि हमारे पास Q प्राइम जो है ना वो ग्रेटर देन है Q सेफ के। तो जो Q सेफ था वो हमारे पास 121 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास Q बार जो है ना वो ग्रेटर है Q सेफ से। सो दिस कंडीशन इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, अभी हमारे पास एक स्ट्रिप फुटिंग है, ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रिप फुटिंग है और वो हमारे पास 1.2 मीटर उसकी विड्थ है। ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, तकरीबन वही इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम है। और यहां से यहां तक ये हमारे पास डिस्टेंस जो है ना वो 1.2 मीटर है, ठीक है, जो वाटर टेबल है। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन और क्या गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास जो h है ये नीचे आ जाएगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, चले ये नीचे आ जाएगा। इसको अगर हम फाइंड करते हैं तो हमने फाइंड भी किया हुआ है ऑलरेडी, ये हमारे पास 1.04 मीटर आ जाएगा, सही है। यहाँ से ऊपर जो हमारे पास सॉइल है वो गामा सैचुरेटेड, वो भी 19.7 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है। और सेम हियर, ठीक है, 19.7 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, हमारे पास फॉर एग्जांपल ड्रेन्ड और अनड्रेन्ड एनालिसिस है, ठीक है, इसमें हमारे पास देखें यहाँ पे अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूं तो वो बेहतर रहेगा। ये हमारे पास अगर आप देखेंगे तो अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ या अनड्रेन्ड या टोटल स्ट्रेस एनालिसिस अगर हम करते हैं, टोटल या हमारे पास अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ, ये पैरामीटर्स हैं। और अगर हमने ड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ या लॉन्ग टर्म एनालिसिस करनी है या इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस करनी है, शॉर्ट टर्म सॉरी लॉन्ग टर्म एनालिसिस करनी है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस के लिए इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस के लिए ये पैरामीटर्स इस्तेमाल करेंगे। कहते हैं कि तरजागी की इक्वेशन इस्तेमाल करें और मेयरहोफ के बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स फाइंड करें। क्वेश्चन की समझ आई है? एक में आपने टोटल स्ट्रेस एनालिसिस करनी है, दूसरे में आपने इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस करनी है। एक में आपने तरजागी की इक्वेशन में ये पैरामीटर्स पुट करने हैं और दूसरे में जो है ना आपने जो इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस में आपने ये पैरामीटर्स पुट करने हैं। तो यहां से भी आपको Q अल्टीमेट आ जाएगा, मैं कहूंगा कि ड्रेन्ड का भी आएगा और Q अल्टीमेट अनड्रेन्ड का भी आएगा। अब इसको फाइंड करें, इसमें जो लोवेस्ट है वो हमारे पास क्या होगा, गवर्निंग कंडीशन होगी, गवर्निंग कंडीशन होगी। तो प्लीज काइंडली फाइंड करें Q अल्टीमेट फॉर द ड्रेन्ड और Q अल्टीमेट फॉर द अनड्रेन्ड कंडीशन, और मुझे आप उसकी वैल्यूज दे दें।
सर ये कर लेंगे फुल सर। हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ना, ये तो इतना मुश्किल है नहीं। हाँ सर, ठीक है, सर ये कर लेंगे सर, अगर मसला हुआ तो फिर नेक्स्ट क्लास में बता देंगे सर। इंशाल्लाह मसला, हाँ इंशाल्लाह मसला इसमें होगा नहीं। फिर आखिर में एक शॉर्ट जो है ना वो प्रॉब्लम है, उसको फिर हम करते हैं और फिर हम बाकायदा सर क्लास को, इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम भी है। ये जो है ना लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये लास्ट वाला है। ये बाकी सारा सेम है, ये असल में बेस करता है उस पे, ठीक है, इस पे सोल्यूशन गिवन है, अगर आप इसको देख लें। ये हमारे पास एक फाउंडेशन है, वो हमारे पास 3 by 3 मीटर की है। ये लास्ट प्रॉब्लम इन अवर बियरिंग कैपेसिटी चैप्टर नंबर 2। परमानेंट लोड कितना है? परमानेंट लोड का मतलब है कि हमारे पास डेड लोड कितना है, ये हमारे पास 4000 किलो न्यूटन है। वेरिएबल जो लोड है, जो हमारे पास लाइव लोड है, वो हमारे पास कितना है, वो 1500 किलो न्यूटन है। और डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर इन सैंड है, ठीक है, ये हमारे पास डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन है। द वाटर टेबल इज एट द सरफेस, वो तो ठीक है, सरफेस पे है। द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सैंड बीइंग 20 किलो न्यूटन, ये हमारे पास गैमा सैचुरेटेड होगा। फिर हमारे पास ड्रेन्ड shear strength पैरामीटर्स भी गिवन है, सी प्राइम एंड फी प्राइम भी गिवन है। इज द bearing resistance limit state satisfied in accordance with the limit state method? तो ये LRFD थोड़ा बहुत हमने इसको डिस्कस किया था, लोड रेजिस्टेंस एंड फैक्टर्ड डिजाइन। इसमें होता क्या है कि इसमें आपको फैक्टर्स दिए जाते हैं कि इतने फैक्टर्ड पे आपने इस डेड लोड को इंक्रीज करना है और इतने फैक्टर्स पे आपने लाइव लोड को इंक्रीज करना है। तो ये लाइव लोड के लिए 1.3 हो गया और डेड लोड के लिए 1.0, डेड लोड के लिए हमारे पास फैक्टर्स होंगे। तो ये लोड के लिए फैक्टर्स हो जाएंगे और ये हमारे पास स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर्स, या इस केस में हमारे पास फ्रिक्शन एंगल है, तो वो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय फ्रिक्शन एंगल हम करेंगे तो हमारे पास ये डिजाइन का जो है ना वो फ्रिक्शन एंगल आ जाएगा। एनीवेज, तो इसमें सिंपल आपने डिजाइन लोड को फाइंड करना है, तो डिजाइन लोड तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, सिर्फ 1 को मल्टीप्लाई करें डेड लोड के साथ और फिर इसको जमा करें, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो लाइव लोड जो डिजाइन का है, ठीक है ना, 1.3 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपने और 1 यहाँ पे डेड लोड के साथ अप्लाई हो गया। अभी डिजाइन बियरिंग रेजिस्टेंस है, ये डिजाइन बियरिंग रेजिस्टेंस सेम है। ये अगर आप देखें तिरजागी की जो इक्वेशन है वो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए जो कि अलाउएबल स्ट्रेस डिजाइन में यूज होती है। ये सारे जो प्रॉब्लम हमने पिछले किए हुए हैं ये बेस्ड हैं अलाउएबल स्ट्रेस डिजाइन, ठीक है, ये वो जो डिजाइन अप्रोचेस थे हमने पढ़े थे। तो ये जो क्यू अल्टीमेट का था और ये हमारे पास क्या है, लोड रेजिस्टेंस फैक्टर डिजाइन। इसमें हम लोड्स को थोड़ा सा जो है ना वो इंक्रीज करते हैं और रेजिस्टेंस को थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं ताकि हमें जो है ना वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा मिले। या हमारे पास जो, और बाद में इसको दोनों को कंपेयर किया जाता है। अच्छा, तो कहते हैं कि वाटर टेबल सरफेस पे तो आपने यूनिट वेट को क्या इस्तेमाल करना है, ये वाला इस्तेमाल करना है इन बोथ टर्म्स, जो सेकंड टर्म है और थर्ड टर्म है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.8 को मल्टीप्लाई किया गया है जो फ्रिक्शन एंगल की वैल्यू है। तो इससे जो डिजाइन की फ्रिक्शन एंगल की वैल्यू आती है, मैं कहूंगा इसको फी डी, वो हमारे पास 33 डिग्री आ जाती है। तो हमने फ्रिक्शन एंगल को फाइंड किया लेकिन हमने उसको फर्दर रिड्यूस कर दिया है। फिर इस बेसिस पे हमने मेयरहोफ बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स से, मेयरहोफ के जो बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हैं उनको फाइंड किया है। फिर क्यू अल्टीमेट भी आ गया, हमारे पास डायमेंशंस भी मौजूद हैं। रेजिस्टेंस जो है ना हमारे पास कितनी आ गई है, डिजाइन बियरिंग रेजिस्टेंस वो हमारे पास इतनी आ गई है 6777 किलो न्यूटन। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास जो डिजाइन लोड है वो 5950 किलो न्यूटन है। चूंकि हमारे पास रेजिस्टेंस ज्यादा है डिजाइन लोड से, दैट्स व्हाई वी आर ओके
या द बियरिंग रेजिस्टेंस लिमिट स्टेट इज सेटिस्फाइड। ठीक है, हमारे पास ये सॉइल जो है ना ये बियर कर लेगी, ये लोड्स जो हमारे पास हैं इनको ये सॉइल बियर कर लेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग वेरी पेशेंटली। इफ यू हैव एनी questions regarding today's class or the previous class, so we will move towards our question and answer session now. Thank you.